15.25 को देखते हैं क्या करना है, जल्दी से ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद विल गो टू इक्वेशंस। So we are subtracting a polynomials, and then we have to write in standard form. Standard form means सबसे जो हाईएस्ट डिग्री है पहले वो लिखना है वेरिएबल का, उसके बाद डिग्री कम करना है। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, दिस इज पॉलिनोमियल नंबर 1, दिस इज पॉलिनोमियल नंबर 2, और जो सेकंड पॉलिनोमियल है इट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट वन। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो है कि आप ब्रैकेट को, इफ यू जस्ट रिमूव दिस ब्रैकेट, द सेकंड वन जो ब्रैकेट है, हाउ डू यू रिमूव द ब्रैकेट? यू सी कि ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड ब्रैकेट, दिस होल ग्रुप। सर वन से नहीं, नहीं वन से नहीं, अगर तो मल्टीप्लिकेशन देखना है तब ये नेगेटिव 1 से हो रहा है, क्योंकि बाहर इसमें नेगेटिव है, देन दैट मीन्स नेगेटिव 1 से you have to multiply, so you can distribute -1 on, you can distribute it distributive property of multiplication. तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, this negative and negative becomes positive 7y², then this negative and this positive is negative 5y, and this negative and this positive is -1. ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये तो पॉजिटिव 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये तो एज इट इज यू कैन राइट 6y² - 9y + 4। अब ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया, तो नाउ यू हैव टू ऐड लाइक टर्म्स। किस किस को ऐड करोगे? Yes. 6y², 7y²। हाँ, तो ये हाँ, so 6y² is positive, this is also positive, so both will get added, so this becomes 7 and 6 is 13y², तो ये तो हो गया। उसके बाद you have -9 and -5, so -9 and -5 both are in the same direction, so they will get added. So answer Sir, will 13y² - 14y + 3. -14y, so जो y वाला है ये भी हो गया, and then +4 and -1. Sir, +3. After that, +3. So this is your answer. Okay. Wait. तो ये कैसे हमने निकाला? हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। The other method is, first you write this polynomial, तो इसको लिखो 6y² - 9y + 4, और कॉलम वाइज you can subtract। फिर ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है ये इसके नीचे लिखेंगे, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे। सो y² we have -7y²
positive 5y and positive 1. और इनको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट हम साइड में लिखेंगे। सो मोमेंट यू आर सब्ट्रैक्टिंग, जो आपकी ये सेकंड लाइन है, सेकंड पॉलिनोमियल जो है, इनका सबों का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। सो -7 will become positive, +5 will become negative, and +1 will become negative. Now you can add them column wise. So you can add these two, you can add these two, and then you can add these two. So you will get same answer. Okay, you will get same answer. 13y square minus, sorry, negative 14y positive 3. तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में 13y स्क्वायर। स्क्वायर कैसे लिखेंगे? इसको क्लिक करते हैं, दिस इज आवर स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, सो 13y स्क्वायर negative 14y and positive 3. So this is how you will write answer in this block, and then you will check your answer. Now do this one quickly. अब सभी लोग जल्दी से करेंगे. Either this is first polynomial, this is second polynomial. Either you remove the bracket or do column wise. It is up to you. Column wise भी कर सकते हो और ब्रैकेट को भी रिमूव करके फिर लाइक टर्म्स को ऐड करना है. शाबाश, जल्दी जल्दी करो और मेरे को आंसर बताओ. So what are we doing? We are subtracting polynomials. So how do you want to do it? Column wise or removing the bracket? देखो दोनों करते हैं फटाफट. अगर कॉलम वाइज करना है, लेफ्ट साइड में लेट अस डू कॉलम वाइज, राइट में वी विल रिमूव दिस ब्रैकेट. सो फर्स्ट 3x cube plus 4x square. Then the second polynomial. First term is positive 2x cube. So we'll write 2x cube. Like term के नीचे like term. Then positive 3x square. Positive 3x square. Then negative x. अब ऊपर तो x है नहीं, तो we can consider this as blank or 0. Now we have to subtract. So we will write subtract. The moment you write subtract, आपके जो second polynomial है, उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा. So this positive 2x cube will become negative. This will also become negative. This will become positive. Now you add the column wise. ठीक है, ये जो है this is subtraction. ये तो अलग लिखना चाहिए. You should write it separately. So this is now first column. What will be the answer? कौन बताएगा आंसर? शाबाश, जल्दी जल्दी. Sir, 1x3. 1x cube. Okay. Second column. Sir, 1x square. Square. Very good. Third Sir, column. Sir, positive x. So our answer is 1. Normally we don't write. We can straight away write x cube plus x square
प्लस एक्स। तो ये आंसर आ गया। तो आप ऐसे कॉलम वाइज भी लिख सकते हो, और यू कैन ऑल्सो सिंपली रिमूव द ब्रैकेट। फिर ब्रैकेट में ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर क्या है। जैसे यहाँ इस सेकेंड ब्रैकेट के बाहर क्या है, -1, और फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर क्या है, +1। फिर एक एक करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फिर ऐड करना है लाइक टर्म्स एंड लाइक टर्म विद लाइक टर्म। ठीक है। सो दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 5.25, subtracting polynomial. So आप जब भी टाइम मिलेगा you should do this 15.25. ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 15.26. 26 is evaluating expressions with one variable, and 15.27 is with multiple variables. Evaluate क्या होता है? Evaluate means to find value. You have to find value of some expressions. ये तो बहुत सिंपल है, with one variable. So let us do this exercise quickly. अब क्या कह रहा है ये? Evaluate 4g minus 12 when मतलब जब, when g is equal to 5. So what will be the value of this expression? क्या बात, जल्दी से बताओ। 4g का क्या वैल्यू होगा? ये तो फास्ट करना है, आप प्रैक्टिस करनी है फास्ट करने की। 4g मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई g, और g का वैल्यू क्या है? +5। तो 4g क्या बन जाएगा? 4 into 5 20 minus 12, और 20 minus 8। तो हाँ, तो ऐसे ही फास्ट करना है। सो 8 we will write here and then check. Yes, what will be the answer? Quick. 9 minus b एक्सप्रेशन है, और b आपका 8 है। सर 1 9 minus 8 is 1, तो यहाँ 1 लिख लिया। Now r is 5, और एक्सप्रेशन क्या है? 15 upon r minus 1। सर 2। हाँ, तो r is your 5. 15 upon 15 divided by 5 is 3. 3 minus 1 is 2. So you quickly write 2. ठीक है ना? ये तो फास्ट हो जाएगा एकदम। What is the answer? सर 3, क्योंकि जो j है, वेरिएबल j, this is 12. तो 12 divided by j, हमारा एक्सप्रेशन ये है, इसको हमें इवेलुएट करना है। इवेलुएट यानी कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन j is 12। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट करना है ये एक्सरसाइज। ये भी बड़ा सिंपल है। तो ये कहाँ पे आपको मिलेगा? 15.26। Now let us go to 15.27. 27 is expression with multiple variables. इसमें 15.26 में there was only one variable. वो वेरिएबल y था या j था, बट पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल था। अब एक से ज्यादा होगा तो क्या है, वो भी बहुत इजी है। अब 15.27 की ये एक्सरसाइज
बड़ी काफी अच्छी एक्सरसाइजेस बनाई है खान एकेडमी ने, तो इसलिए आपको खूब प्रैक्टिस करना चाहिए। अब एक्सप्रेशन क्या है? चलो ये बीच में कहां से आ गया? अब क्या लिखा है? इवेल्युएट। नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन? दिस इज योर एक्सप्रेशन। अब आप ध्यान से देखोगे, इसमें दो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? जे भी है और के भी है। तो दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। जे अगर 2 होगा और के अगर 6 होगा, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। शाबाश, जल्दी से बताओ। Who will tell me? You raise your hands. जिसने जो बताना चाहता है वो हाथ खड़ा करेगा। हाँ, कौन बताएगा? कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर इसका आंसर होगा 231। 231 कैसे? ये हो गया आपका 3 यस सर प्लस 3। हाँ सर जे का वैल्यू है 2 और के का वैल्यू 6, तो 2 इंटू 6 हाँ 12। और सर के 3 तो 6 मतलब 6 इंटू 6 होगा। तो हाँ। सर वो हो जाएगा 216। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 क्यूब हो जाता है 6 200। इंटू 206। 16। 6 क्यूब हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6। सर तो वो तो 231 आंसर होता है। हाँ, तो 231 यहाँ आंसर लिखेंगे। तो वी विल राइट 231। वेरी गुड। नेक्स्ट। Sir, I have sent also the. हाँ 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 हाँ, मैंने देखा आपका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ डू द नेक्स्ट। Now you have to evaluate this expression when R is 6, S is 5. शाबाश, सभी करेंगे। Sir, 0. जीरो? नो सर। देख, 8 इंटू R minus R into S. R is your 6 and S is your 5. 8 6 are 48. Yes, sir, it is. I forgot. सर आंसर सर 18। सर 12। Answer is 18. सर बट दोनों आर की एक ही वैल्यू है। हाँ तो दो की, दोनों की है ना। ये तो 8R है। 8R का क्या मतलब है? 8 इंटू R। R आपका 6 है, तो वही तो मैंने लिखा है पहले, 8 इंटू 6। फिर आपका है माइनस R इंटू S। तो माइनस R फिर से आपका 6 है और S 5 है। तो 6 5 30 और 6 8 48। So answer is 18. Sir, then we'll minus and we'll get 18.
Yes, then we'll minus and we'll get 18. Now do the next question and give me your answer on the chat. अब chat पे लिख के दिखाओ. चैट पे लिखना. सर डिवाइड में सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. आपको उसका हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में ही करो, तभी तो ऐड कर पाओगे. जो सिंपल तरीका है उसी से करो, वो आपकी मर्जी है. तो चैट पे आंसर लिखना है. हाँ चैट पे लिखना. वेरी गुड. अंजलि ने लिखा. मैंने ही भेज दिया. ओके. ऐसे जल्दी जल्दी करना है. 9, हाँ वेरी गुड. 9 अपॉन जी, तो 9 अपॉन जी इज 3 प्लस 2 इंटू एच, 2 मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस 5. तो 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 3, 2 6 are 12 and 5. 12 plus 3 is 15, 15 plus 5 is 20. ठीक है, तो ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी. दिस वाज विच एक्सरसाइज? दिस वाज 15.27. तो ये इनकी जो अगर कोई कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं, आप इनको प्रैक्टिस बाद में कर सकते हो. 15.26 को और 15.27. ओके, यहाँ तक तो ठीक हो गया ना? तो इन दोनों को हम यस सर. इन दोनों को असाइन करते हैं तो आपको दिखाई देगा. ये असाइन किया मैंने तो आपको 15.26 दिखाई देगा. 15.27 को भी असाइन करते हैं जल्दी से, तो ये भी आप कर सकते हो. ये भी आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर पे दिखाई देगा. ठीक है, सो 15.26 करो, 15.27 करो. नाउ यू आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. जो नए नए छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, उनका देखो इमेज जो है, ये इमेज ये डिफरेंट है. ये इसके अंदर असाइनमेंट्स है. अगर आप ऊपर देखोगे, यहाँ पे अगर देखोगे, एक तो मैंने स्टार बनाया हुआ है और इसका इमेज भी अलग है. सो दिस इज, और कैपिटल में भी लिखा है जो कि ये अलग नजर आए. फिर इसके अंदर ये आपके एक्सरसाइजेज हैं. यू शुड प्रैक्टिस दीज एक्सरसाइजेज. फिर हमारा नेक्स्ट है दिस वन, इक्वेशंस. इक्वेशन 1 लिखना कहाँ है? 15.3. तो पहले हम देखेंगे 3.1. Let us do 15.31. टेस्टिंग सॉल्यूशंस. तो कोई भी जो आपका सॉल्यूशन है उसको टेस्ट करना है. अब देखो अब ये थोड़ा सा अलग से, अब कैसे पूछा है क्वेश्चन, क्या बनाया है, लिखा है select all the equations where x is equal to 3 is a solution. That means अगर x 3 होगा तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के अगर बराबर है तो आपने उस इक्वेशन को सिलेक्ट करना है.
जहां पे x, अब आपके पास कितने इक्वेशन है? 1 2 3 4 5 इक्वेशंस है. दीज आर ऑल इक्वेशंस. और ये पूछ रहा है कि इन इक्वेशन में x इक्वल टू 3 किस किस का सोल्यूशन है? का अब जहां पे x का x सर ए एक तो a है, क्योंकि यहां सीधा ही पता चल रहा है x क्या होगा. से इस प्लस पॉजिटिव 4 को यहां लाएंगे तो ये 3 बन जाएगा. तो दैट मीन्स हाँ a तो है. सर बी वाला भी है. b कैसे? x अगर आपका 3 है तो 3/9 3 होता है क्या? हाँ सर. सर इनका सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे ना. हाँ, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे x/3 3/9 3 थोड़ी ना होता है, 9/3 3 होता है. सर सी नंबर. c सर सी 5 - 5. यस सर. सर सी है. हाँ, तो ये दो आंसर्स करेक्ट है. क्योंकि अभी आप अगर d देखोगे, d में x कितने, d का x का क्या वैल्यू होगा इन d? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? 8 into 3. 8 into 3. 4 4 सर. सर 4. 8 4 13. So इसमें what will be your solution? x equal to 4. But we are checking x equal to 3. That means ये नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. So A and C. और वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है choose 2 answers. That means only 2 answers are correct. So you have chosen A and C. And then you can check. Now let us see. अब ये कह रहा है which value of W, अब वेरिएबल है W, तो W के 3 ऑप्शंस दिए हैं 1 4 एंड 16. तो इसमें से कह रहा है W का कौन सा वैल्यू, which value makes this equation a true statement. और जहां पे ये डॉट है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाइड. तो ये आपका लेफ्ट साइड है. सर एक बार नीचे करके दिखा दीजिए कितने ऑप्शन है टोटल. ऑप्शन तो शायद 3 ही है, एक मिनट देखते हैं नीचे. ऑप्शन तो सॉरी ऑप्शन 4 है. तो अभी आपको ये जो इक्वेशन है इसमें W का वैल्यू फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल इक्वेशन क्या है? 14 इज इक्वल टू 11 प्लस W/8 इंटू 6, यानी कि यहाँ W को 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो आप W6 लिखो या आप इसको 6W भी लिख सकते हो. और ये जो डॉट दिया हुआ है, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज योर W मल्टीप्लाइड बाई 6. अब अगर अब हमें W निकालना है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए पता नहीं सबू ने शायद इक्वेशंस का नहीं प्रैक्टिस किया होगा, या आधों के लिए शायद ये नया भी है, तो इसको मैं एक बारी फिर से आपको समझाता हूँ. जो न्यू स्टूडेंट्स उनके लिए थोड़ा सा एक बारी रिपीट करते हैं. तो इक्वेशन इज 14 इज इक्वल टू 11 प्लस W इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8. अब ध्यान से देखो बोर्ड पे, एक बारी मैं समझाता हूँ. जब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, अब इस इक्वेशन को सपोज इसमें लिखा होगा, इसमें क्वेश्चन कैसे हो सकता है, इसमें लिखा हो ऐसा भी हो सकता है सॉल्व मतलब जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच इज W.
तो हमने क्या सीखा था कि जब हमें किसी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना होता है, उस वेरिएबल को हम इक्वेशन के एक साइड पे रख लेते हैं, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। यानी कि अगर आपका जैसे यहाँ W राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे आपका सिर्फ W बच जाना चाहिए, बाकी सारे नंबर्स यहाँ पे आ जाने चाहिए। देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ W। तो दैट मीन्स जहां जिस साइड पे वेरिएबल है, फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप शुड बी फाइंड operations on the side, on that side which has variable। तो जिस साइड में वेरिएबल है, उस साइड पे आप देखो क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, और फिर उन ऑपरेशंस को नेक्स्ट स्टेप इज उनको अनडू करना है। अनडू यानी कि उनको कैंसिल करना है, उन ऑपरेशंस को हटाना है। अनडू द ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशन? जो वेरिएबल की साइड में हो रहे हैं, जो यहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनको अनडू करना है। और अनडू के लिए कौन सा ऑर्डर यूज करना है? अनडू के लिए बॉड मास का उल्टा, बॉड मास का ऑपोजिट। हाँ, बिकॉज आप अनडू कर रहे हो। ठीक है, दैट मीन्स जब आप ऑपरेशन करते हो, व्हेन यू डू द ऑपरेशन, तब तो ये ऑर्डर चलेगा। और जब आप अनडू करोगे तब ऑपरेशन क्या चलेगा? पहले एस उल्टी डायरेक्शन में। दैट मीन्स सबसे पहले आप सब्ट्रैक्शन को अनडू करोगे, फिर एडिशन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर डिवीजन को, फिर ऑर्डर को, फिर ब्रैकेट को। सो अभी इसमें आपने देखना है ऑपरेशन W पे कहाँ हो रहा है? राइट साइड में। और क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है? एक तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे डिवीजन हो रहा है बिकॉज दिस इज डिवाइडिंग लाइन, और यहाँ पे एडिशन हो रहा है। सो देयर आर 3 ऑपरेशंस। अब आपको ये ऑपरेशंस जो है वो अनडू कर रहे हैं। तो अनडू में सबसे पहले क्या अनडू करोगे? सर एडिशन। एडिशन, वेरी गुड। क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, एडिशन है। सो दैट मीन्स एडिशन क्या है? एडिशन ये वाला है। सो यहाँ पे ये एक टर्म है और उसको ऐड हो रहा है 11। सो हमें क्या करना चाहिए? ये 11 को यहाँ लाना चाहिए। और जब हम दूसरी साइड ले जाते हैं, ऑपरेशन इनवर्स हो जाता है। अगर यहाँ पे तो वो माइनस हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ एडिशन है तो यहाँ जाके ये माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 11 माइनस बाय 14 इक्वल्स 3। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? ये 11 जो है ये यहाँ जाके माइनस होगा। यहाँ ये 14 तो पॉजिटिव है, इसको तो वैसे का वैसे ही लिखना है, पॉजिटिव 14। दिस 11 becomes subtract 11। आपने इस 11 को यहाँ लाया, और राइट साइड में क्या बच गया? W मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको सिंप्लीफाई करो। 14 माइनस 11 इज 3। सो 3 इज इक्वल टू W इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8। अब देखो कौन कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। एक तो मल्टीप्लिकेशन है और एक डिवीजन है। तो पहले किसको अनडू करोगे? यहाँ देखो सर मल्टीप्लिकेशन। सर एडिशन। एडिशन तो हो गया, एडिशन तो कर लिया ना हमने। मल्टीप्लिकेशन। तो क्या? मल्टीप्लिकेशन
नाउ हाँ, अब मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है उसको अंडू करेंगे हम, ठीक है। ओके सर। सो आप ऐसे देख सकते हो कि ये जो 6 है ये W से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस 6 को यहाँ लाएंगे ये क्या बन जाएगा? डिवाइड। हाँ, तो आप लिख सकते हो 3 डिवाइडेड बाई 6, ये 6 कट गया और यहाँ बच गया W डिवाइडेड बाई 8। अब कौन सा ऑपरेशन बच गया? डिवीजन। और डिवीजन का अपोजिट क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो ये जो 8 नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ये यहाँ चला जाएगा ये क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। सो ये 8 यहाँ 3 और 6 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे ना, फिर उसे उससे हाँ, करेंगे। वो भी कर सकते हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो 8 यहाँ चला गया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है, यानी कि डिवीजन है। जब ये यहाँ चला जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन बनेगा। सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू W, क्योंकि 8 तो यहाँ से हट गया। सो W की क्या वैल्यू बन गई? 1 कहाँ बन गई? 8 इंटू 1/2, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सर मतलब वो 1 की जगह 8 आ गया ना ऊपर। हाँ, तो अब वैल्यू क्या बन गई? अब 1 और 8 तो 8 होता है, 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 8 डिवाइडेड 4। सो आपने W का वैल्यू फाइंड किया। दिस इज हाउ यू सॉल्व इक्वेशन, ठीक है। ओके सर। तो ये स्टेप्स याद रखने। सबसे पहले आपको फाइंड ऑपरेशन ऑन दैट साइड which has variable, उसके बाद उन ऑपरेशंस को अनडू करना है, और उसका ध्यान ये रखना है कि अगर अनडू करना है तो बॉड मास का अपोजिट इस सीक्वेंस में एक एक को अनडू करना है, एंड देन यू विल गेट द आंसर। सो W is 4. So if we come back to our question, W is equal to 4, ऑप्शन B है। यस सर। ठीक है ना। अब इसको, ये तो हो गया जब हमने इसको आराम से एक एक स्टेप से सॉल्व किया। यस सर। अब शॉर्ट मेथड में अगर आप इसको, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस है, इसमें से सिलेक्ट करना है, तो आप जल्दी से इसको W को एक एक करके डाल दो वैल्यू। पहला 1 है, W को अगर आप 1 लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा? राइट साइड में बनेगा 11 प्लस 6/8। तो वो तो 14 के बराबर नहीं होता है। ये तो 3 तो नहीं ना है, 11 प्लस 3 14 होगा, ये तो 3 नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन ए कट गया। फिर नेक्स्ट डाल दिया 4 4 में मल्टीप्लाई में 6 4/8। तो 4 जब आप 4 लगाओगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 6 24, 24 को 8 से डिवाइड किया तो वो तो 3 हो गया। दैट मीन्स ये सारा 3 बन गया। 3 + 11 इज 14। हाँ, 4 आंसर है। और आपके पास क्योंकि लिखा है एक ही आंसर सेलेक्ट करना है, तो ये तो वो बी वाला ही होगा। हाँ, सी और डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो गलत था और ये करेक्ट, तो उससे थोड़ा जल्दी आंसर मिला। ऐसे भी कर सकते हो आप। अब बताओ, अब ये खुद करो। ऑल ऑफ यू ट्राई दिस क्वेश्चन। अब आंसर, अब देखो यहाँ पे आंसर हिंट क्या दिया है? चूज 3 आंसर्स। इसका मतलब है इन आउट ऑफ दीज 5 3 आर करेक्ट, वेयर A is equal to 8।
अब कैसे करोगे? अब इनको फटाफट ए के बदले आप ए इक्वल टू 8 डालो। ऑप्शन ए में अगर 8 डालोगे 11 प्लस 8 इज 19, ये तो आउट हो गया। सर ऐसे बी वाला चाहिए। सर बी वाला है। ओके, सर सी वाला भी है। सर ई वाला भी है। और ऊपर लिखा है 3 आंसर्स, तो 3 तो मिल गया आपको, बी सी ई, क्योंकि डी तो होगा नहीं, डी तो 7 इंटू ए है, 7 8 जा 7 बाय ए और 8 मल्टीप्लाई बाय 7 तो आ वो रहा तो है 56। 56 है। यहाँ पे तो लेफ्ट साइड में 42 है, तो ये भी आउट हो गया, ये भी आउट। तो हमारे आंसर हैं बी सी एंड ई। So this is how you can do quickly. Now next question. अब आपने ये खुद करना है और मेरे को आंसर चैट पे लिखना है, all of you. चैट पे लिखो, तो मैं म्यूट कर देता हूँ। सर ब्रैकेट के सर कुछ कह रहे हो? ये सर पूछने वाला था, समझ आ गया। हाँ, क्या पूछना है? क्या ऑप्शन आ गया? ये तो बहुत इजी है। एक्सप्रेशन क्या है? व्हाट इज योर एक्सप्रेशन? 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई जे। तो पहले 5 प्लस 3 क्या होता है? 8। दैट मीन्स 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 48 बन जाए, तो एकदम आंसर मिल जाएगा। सर मैंने लिख दिया। हाँ, ऑप्शन डी, दिस इज सो सिंपल। तो बाकी के क्वेश्चंस खुद करना प्रैक्टिस। ओके सर। सो इफ यू सी, आपके पास 15.31 भी है, सर 15.31 15.31 सर ये किसको दिखाई नहीं है, क्या कह रहे हो? सर ये कौन सा नेम क्या है? गूगल क्लासरूम, ये है ना मैथ मिडिल, इसमें आपने ज्वाइन नहीं मैथ किया है? मिडल अभी सर देखते हैं किया किस किस। हाँ, तो बस आपको दिखाई देगा फिर मैथ मिडिल। हाँ, आपने किया है ज्वाइन। तो मैथ मिडिल में ही सारे लोग प्रैक्टिस करेंगे। सर इसमें तो सिर्फ अलजेब्रा और वो है मेजरमेंट। हाँ, तो नहीं, इसमें बहुत सारे हैं। इसमें टोटल कितने हैं? टोटल 15 टॉपिक्स हैं। अभी तो हम ये वाला कर रहे हैं, टॉपिक 15, फिर ये सर सारे आपने करने वो हैं। साइन किया है वो कौन सा? वाला वो अभी जो हम कर रहे थे। हाँ, ये है ना 15.31, तो इसको भी मैं असाइन करता हूँ, ये भी आपको दिखाई देगा 15.31। फिर 15.32 भी करता हूँ, 15.32 वो भी यही है, सिमिलर है। सर 15.3 है या 15.4 है? बस पहले यही दो काफी हैं, इन दो की प्रैक्टिस करो, दो दो करके करो। सो यू डू दिस 15.31 एंड 15.32, आज के लिए असाइन काफी है। असाइन कर दिया। है सेंड क्या करना है? ये तो गूगल असाइन क्लासरूम में असाइन जो असाइन असाइन कर लिया। हाँ, तभी तो ये डार्क हो गया ना, ये देखो डार्क हो गया।
यस सर वरना सर बट ये यहाँ लाइट में भी दिखा रहा है। नहीं, Okay. लाइट में छोड़ दो, ये आपको दिखाई नहीं देगा। लाइट, जो लाइट है वो आपको नहीं दिखाई देगा, जब तक असाइन नहीं होगा तब तक आपके मोबाइल पे दिखाई नहीं देगा। अब मैंने असाइन कर दिया तो ये दो आपको दिख रहे हैं, 15.31 एंड 15.32। तो ये मैं स्ट्रीम पे ऊपर, जैसे ये स्ट्रीम है ना, ये वाला, जब आप गूगल क्लासरूम खोलते हो सबसे पहले स्ट्रीम दिखता है, तो स्ट्रीम पे मैं लिख लेता हूँ, या मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखूंगा डू, या मैं यहाँ लिखूंगा प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर 15.31 एंड 15.32, और ये पोस्ट करूंगा। तो अब ये आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, और ये याद भी रहेगा कि हमने क्या क्या किया था, क्या करना है। देखो पिछली क्लास में मैंने लिखा है स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस 15.23, 24 एंड 25। ठीक है, तो आप लोग ये आराम से बैठ के जब भी टाइम मिले आराम से करना चाहिए, उससे आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके सर। चलो फिर, ओके देन, बाय एवरीवन। बाय सर। Bye, sir. बाय सर। बाय। बाय सर, थैंक यू फॉर टीचिंग।